ہمارے جنرل صاحب نے جو ہے اقدامات لینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے۔ پہلے تو میں ہیپی پیلیس گروپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، محمد آصف خان اور میڈم ملیحہ کو۔ This was such a wonderful event, especially جو اس کا تھیم تھا نا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں۔ آج کل سب سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسل کو اس ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ میں سارے اسکولس کو ٹیکس فری کر دوں گی۔ صدر اعظم وقت اس موضوع کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں کہ پتھروں کے دلوں کو بھی آپ کر دے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں۔ ہے کوئی جو مجھے شناخت کرے ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے، جو فزکس کے میدان میں تہلکہ مچا کر نوبل پرائز کے حقدار بن جاتے ہیں؟ بھائی وقار، مجھے پاکستانی ہونے پر نہ صرف فخر ہے بلکہ غرور بھی ہے، کیونکہ کبھی میں راشد نظام عزت الفیل میری شبیر بن کے اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کرتی ہوں، تو کبھی اللہ قریب بن جاتی ہوں، کبھی موزن پاکستان عبدالقدیر خان ہوتی ہوں، کبھی انسانیت کی لازمات انسان عبدالستار کی سفر پاک چھپا ہوتی ہوں، تو کبھی عباس سچ کے آواز شہید بن جاتی ہوں۔ میری ذات کے آنگن میں جو سبز اجالا ہے، میری ذات کے آنگن میں جو سبز اجالا ہے، اس چاند ستارے کے پرچم کا حوالہ ہے۔ میں اس کے حوالے سے خود کو پہچانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ جناب صدر، آج اگر ملک پاکستان میں ہم خوش و خرم ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ قائدہ محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ اگر قائد اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا اور علامہ اقبال نے پاکستان کا خط نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے۔ وطن کی طرف میری آنکھ سے دیکھے تو بھی ہم اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب جذبہ آتا ہے پریکٹیکل کے طرف کہ ہمیں عملی اقدام کیا اٹھانے ہیں جو ہمارا ملک ترقی کرے، تو اب آپ سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عملی اقدامات کی طرف لے آئے کہ ہر بچہ جو جہاں ہے اپنا کردار ادا کرے، ہر فرد اپنا کردار ادا کرے، ہر ادارہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ یہ ملک اور ملت کی ترقی میں ایک حصہ ڈالے اور ہم ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے۔ اور مجھے بہت فخر ہے کہ آج کی اس تقریب کی میں چیف گیسٹ ہوں۔ بہت اچھا لگا جو بچے گانے گا رہے تھے، اسپیچز کر رہے تھے، علامہ اقبال کی شاعری پڑھ رہے تھے۔ آپ یقین کریں وہ جو ہم انگلش میں کہتے ہیں گوز بمپ، رونگٹے کھڑے ہو جانا، پورا جوش اور جذبہ آ جانا، میرے اپنے فیلنگز تھے کہ مجھ میں بہت جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، اور جہاں بیٹھے ہر انسان کے یہی فیلنگز ہے۔
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. डॉक्टर आसिफ खान जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और जो है एजुकेशन पे जिनकी बड़ी खिदमतें आई उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आसिफ भाई? आसिफ साहब, ये जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया उसका क्या मकसद था? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल की रिवायत रही है कि इस तरह से प्रोग्राम वो करता रहता है, हर साल करता है प्रोग्राम। और इस साल भी कराची से तकरीबन 20 से ज़्यादा स्कूल और नामी गिरामी जो स्कूल हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। और इसका मकसद, जो आपका सवाल है, इसका मकसद ये था कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, अपने मुल्क के बारे के अंदर उनको पता चले। और इसका जो मौजू था कि मैं हूँ पाकिस्तानी, इस टॉपिक के ऊपर बच्चों ने तकरीर की, अपने बताया और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मुख्तलिफ अशार के ज़रिए, मुख्तलिफ अपनी स्पीचेस के ज़रिए मिली नग़मे पेश किए गए, टैबलोस पेश किए गए आज के प्रोग्राम के अंदर। और पूरे सेंट्रल, ना सिर्फ सेंट्रल के बल्कि पूरे कराची से मुख्तलिफ 20 मुख्तलिफ स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 60 से 65 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तकरीरों के मुकाबले हुए और फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्राइजेस दिए गए। और आज की जो चीफ गेस्ट थी राफिया मल्ला, जो रजिस्ट्रार हैं, जो कि दिलचस्पी लेती हैं प्राइवेट स्कूलों के मामलों के अंदर, उन्होंने यहाँ पर आके इनामात तकसीम किए। और आप ये देखकर आपको खुशी होगी, आपने पूरा कवरेज किया है कि आज का प्रोग्राम कितना डिसिप्लिन था, कितना ऑर्गेनाइज था और कितना खूबसूरत प्रोग्राम था। और बच्चों का कॉन्फिडेंस आपने जो देखा होगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो लगा होगा कि वाकई में प्राइवेट स्कूलों को सलूट पेश किया जाए कि वो अपने वतन के नौनिहालों को किस तरह से तालीम दे रहे हैं, किस तरह से उनको निखार रहे हैं और कितना उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ट अप कर रहे हैं। जिस तरह तालीम को आप पूरे मुल्क में, शहर में फैला रहे हैं और आला तालीम को फैला रहे हैं, इसी तरह अब बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल को जो है वो हमारे इदारों के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने संभाला दिया है और जिसका रिज़ल्ट आ रहा है बहुत सारी चीज़ों में। आप क्या समझते हैं कि मुल्क की तरक्की के साथ साथ आप एजुकेशन के भी कुछ नए इक़दाम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम बेहतर से बेहतर इक़दाम करें। और आप ये देखिए कि हम कम फ़ीस लेकर जो है बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। माशी हालात दुनिया के ख़राब हैं, बिलखुसूस जो है पाकिस्तान के पेट्रोल की क्या पोजीशन हो चुकी है, डॉलर की क्या पोजीशन हो चुकी है। लेकिन अब हमारे जनरल साहब ने जो है इक़दाम लेना शुरू कर दिया जिसकी वजह से डॉलर भी नीचे आ रहा है। पहले तो मैं हैप्पी पैलेस ग्रुप को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मोहम्मद आसिफ खान और मैडम मलिहा को, क्योंकि ये इस वक्त की शदीद ज़रूरत है कि बच्चों में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो उजागर किया जाना चाहिए। और हैप्पी पैलेस ने न सिर्फ अकेले सिर्फ बल्कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कराची के 24 स्कूल्स को, और सारे बच्चों ने दिल खोल कर पाकिस्तान के मिली नगमे गाए, कंपटीशन में हिस्सा लिया, स्पीचेस किए। और ये एक किस्म की बच्चों में जो है वतन से मोहब्बत और लगा का जज्बा जो है उजागर करने की काबिल तारीफ़ जो है वो एक कोशिश है और बहुत अच्छा लगा। इस किस्म के इवेंट करने चाहिए और मैं कहूँगी कि हैप्पी पैलेस को मुल्क और मिलत की तरक्की में और इवेंट मुनक़िद करके अपना हिस्सा डालना चाहिए और एक अच्छा सा किरदार अदा करने की अभी भी ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर तो एजुकेशन में बहुत काम कर रहा है, जो नज़र भी आ रहा है, जिससे बहुत बच्चे जो है परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे जो है एजुकेशन में बिल्कुल काम नहीं हो रहा। नहीं, अभी 60,000 से ज़ायद जो टीचर्स हैं वो मेरिट पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने
सिलेक्ट किए हैं और इससे उम्मीद है कि पढ़े लिखे सही मानाओं में असातिज़ा आए हैं तो 10 साल के बाद एक अच्छा नस्ल गवर्नमेंट के स्कूल से भी इंशाल्लाह निकलेगा। दिस वाज सच अ वंडरफुल इवेंट, स्पेशली जो इसका थीम था ना कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, सच अ वंडरफुल थिंग कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर पैट्रियाटिज़म जगाने के लिए, हमें एक यूनिटी के लिए जो इस वक्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आई थिंक कि इस तरह के इवेंट्स इन फ्यूचर भी होने चाहिए। हमारा स्कूल हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, तो हमारे जहन में सिर्फ यही बात थी कि जो आजकल सबसे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि हमारी नई नस्ल को इस मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो, ख़ास तौर से हमारी फ़ौज के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और उन चीज़ों को उजागर किया जाए, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल के जहनों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में लगा दिया गया है। तो ज़रूरत इसकी थी कि हम उनको अपने मुल्क की पॉजिटिविटी के बारे में बताएं। ये वही स्कूल है जो एक कमरे से शुरू हुआ था और आप जो है उस सफ़र की हम सफ़र हैं आसिफ भाई की, तो आज उस जगह से इस जगह तक पहुंचने में आप लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, याद है वो सब कुछ? जी जी बिल्कुल याद है कि बहुत मुश्किल वक्त भी देखे, बहुत मुश्किल हालात भी देखे, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम लोग जिस जगह पर हैं वहाँ पे रहकर हमें अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करेंगे, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उसी के थ्रू हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा। मज़ीद हैप्पी पैलेस नया क्या करने जा रहा है एजुकेशन के सिस्टम को? हम इंशाल्लाह ताला इस वक्त कराची से बाहर भी अपने कैंपसेस को प्लान कर रहे हैं कि हम इसको थोड़ा कंट्री वाइड लेकर चलें और एक्सपेंड करें, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स बनाएं और अच्छे से अच्छा मतलब चीज़ों को नई से नई चीज़ों को मुतारिफ़ करें ताकि हमारा स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम्पीट कर सके और उस लेवल पे जाए। एक दिन के लिए अगर आपके हाथ में सारा सिस्टम आ जाए तो आप क्या चीज़ करेंगी इस मुल्क में? नहीं फॉर एजुकेशन मैं सारे स्कूल्स को टैक्स फ्री कर दूंगी, ठीक है, और मैं स्कूल्स के लिए जो लैंड्स हैं वो उनके लिए दूंगी, ताकि बड़ी बड़ी लैंड्स दूंगी ताकि उसमें अच्छे से अच्छे बड़े बड़े पर्पस बिल्ड स्कूल खुल सकें। आसिफ भाई के लिए 2 जुमले। माशाल्लाह इन्हीं की मेहनतों और काविशों की वजह से आज हम जिस मकाम पर हैं वो सब इन्हीं की दिन रात अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से आज हमारे स्कूल ने इतनी तरक्की की है और ऑब्वियसली ही इज़ द फाउंडर ऑफ हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।